আমার এই নিউজ চ্যানেলে দর্শক বন্ধু আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। শুরুতেই বলি, খবর মানেই তো ভোটের খবর। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন এখন আমাদের শিওরে এসে গেছে, অর্থাৎ দরজায় কড়া নাড়ছে। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 23শে এপ্রিল 2026 প্রথম দফার নির্বাচন আমাদের রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায় চলছে নির্বাচনী প্রচার পর্ব এবং তাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারমূলক জনসভা। তার সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিশাল বিশাল জনসভাকে কেন্দ্র করে মানুষের উদ্দীপনা। আর রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির বিভিন্ন জনসভা, সেখানেও ঘটছে বিপুল বিপুল সংখ্যক জনসমাগম। প্রসঙ্গত বলি, এবারে নির্বাচনী জনসভাগুলো প্রতিবারের মতন ওই একঘেয়ে রাজনৈতিক নেতাদের বকবকানি দিয়ে কেবল ভরা নয়। এক একটা জনসভায় নেতাদের বক্তব্য, দেহভঙ্গি, গান, জনসংযোগ কি নেই, প্রত্যেকটা জনসভা বা পথসভাই বর্ণাঢ্য। বিশেষ করে বিজেপির জনসভা ও পথসভাগুলি তো বিশেষভাবে মানুষের মন কাড়ছে। আজ যে জনসভাটির কথা আপনাদের বলবো, সেটি গতকাল অর্থাৎ 19শে এপ্রিল 2026 অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বরানগরেই দক্ষিণেশ্বর আলমবাজার মোড়ে। আমাদের এখানকার বরানগরের বিজেপি দলের প্রার্থী হলেন সজল ঘোষ, যাকে আমরা সকলেই চিনি। তিনি কলকাতা পৌরসভার 50 নম্বর ওয়ার্ডের একজন কাউন্সিলর ছিলেন এবং লেবুতলা পার্ক তথা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার দুর্গাপুজোর প্রধান উদ্যোক্তা তিনি, অর্থাৎ ওই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার দুর্গাপুজো কমিটি তিনি হচ্ছেন জিএস অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি। গত 2025 মানে গত বছরে 2025-এ সেখানে অপারেশন সিন্দুর থিমকে কেন্দ্র করে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে সারা বাংলার মানুষকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রতিদিনই পুজোর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই লেবুতলা পার্কে ফেটে পড়েছিল সেখানকার প্রতিমা দর্শন করার জন্য এবং সন্ধেবেলার ওই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডকে উপভোগ করার জন্য। এবার বলি, এই সজল ঘোষের সমর্থনে দক্ষিণেশ্বর আলমবাজার মোড়ে অনুষ্ঠিত পথসভায় বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন আমাদের লোকপ্রিয় সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তার পরিচয়টা ছোট করে আপনাদের দিয়ে রাখি। উনি একসময় আমাদের ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাটসম্যান ছিলেন, ডানহাতি ব্যাটসম্যান, এবং তিনি একজন ভোজপুরি গায়ক বিশেষত, এবং তিনি এখন লোকসভার সাংসদও বটে। আপনারা দেখুন কিভাবে মনোজ তিওয়ারি তার গানে, কথায়, বক্তব্যে এবং অভিবাদনে ভরিয়ে তুলেছেন সেই জনসভা। আমাদের বরানগর বিধানসভার প্রার্থী শ্রী সজল ঘোষ মহাশয়কে, শ্রী সজল ঘোষ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। এখন অনুদি বরণ করে নেবেন আমাদের বরানগরের প্রভারী শ্রী সত্যেন্দ্র গৌতমজিকে। শ্রী সত্যেন্দ্র গৌতমজি স্বাগতম। এখন অনুদি বরণ করে নেবেন আমাদের বরানগর মন্ডল 1-এর সভানেত্রী শ্রী মলি রায়কে। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। আমাদের আজকের সভার প্রধান অতিথি শ্রী মনোজ তিওয়ারিজি, মনোজ তিওয়ারিজিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বরানগর মন্ডল 1-এর সভানেত্রী শ্রীমতী মলি রায়।
श्री मनोज तिवारी जी स्वागतम। এখন পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বড়নগর বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী শ্রী সজল ঘোষ মহাশয়কে মন্ডল একের সভানেত্রী শ্রীমতী মলি রায়। সজল দাস জিন্দাবাদ, সজল দাস জিন্দাবাদ, আরো জোরে সজল দাস জিন্দাবাদ। আমাদের বড়নগর মন্ডল একের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শিক্ষাবিদ শ্রী কৃষ্ণা কেশরীজি মনোজ তিওয়ারিজির হাতে আমাদের দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর একটি মূর্তি তুলে দিচ্ছেন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বড়নগর বিধানসভার প্রার্থী শ্রী সজল ঘোষ মহাশয়। আমি সজলদাকে আহ্বান করব তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जोर से और जोर से जय जय श्री राम। देखिए यहाँ पर जो संचालक है वो बड़े बदमाश है। ये मनोज जी को बैठा के हमको दिया है भाषण देने के लिए। आप लोग सुनने वाले हो? कोई नहीं सुनने वाला। मैं भी नहीं रखूंगा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, रोज बोलता हूँ। आज जिसको देखने के लिए आए हो, आज जिसको सुनने के लिए आए हो, दीप ऊपर आए। आज आप लोग जिसको सुनने के लिए आए हो, जिसके बात सुनने के लिए आए हो, जिसको देखने के लिए आए हैं, आप उन्हीं के बात सुनिएगा। हमनी के जिनकरा खातिर इंतजार करत रहनी वो हमारे पावन धरती पे आ गए कारण श्री मनोज तिवारी जी। भोजपुरी में गाना सुनने के बाद तो हमरा के बीच आयल बानी हमार सबसे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी। उनकरा के हम मंच पे बुलावे चाहतनी। काली माता की, दक्षिणेश्वर काली माता की, दक्षिणेश्वर मंदिर की, भारत माता की जय श्री राम। मेरे भाई बहन, आज हम बड़ा खुश बानी। आज हमें बड़ा आनंद बा। केनो आमी 12 नगर विधानसभाते आज के ऐसे गाछी हम आज एके आलमबाग बाजार आलम बाजार ठीक आलम बाजार में मनोज तिवारी ऐसे गाছে। देखो আমি ভালো করে বাংলা জানি। ওয়েস্ট বেঙ্গল জন্য আমি নতুন নেই। সজলদা আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি এখানে চাকরি করছিলাম। हम पश्चिम बंगाल और कोलकाता, वारानगर इस सब के गली गली से हम परिचित हैं। बस मेरा मन दुखी है इस बात से कि जिन लोगों ने ये कहा वेस्ट बंगाल से कि आप हमें सत्ता में लाओ, हम माँ माटी मानुष सबको खुश रखेंगे, उन लोगों ने माँ को भी रुला दिया, माटी को भी रुला दिया, मानुष को भी रुला दिया। इसलिए आज हमारे जो सजल घोष दा मेरे प्रिय भाई ने जो बात कही, 100 बात की एक बात होती है मेरे भाई बहन
कि आपने सबको देखा बार बार, भारतीय जनता पार्टी और सजल घोष को देखो एक बार। क्या हो गया है आजकल पश्चिम बंगाल में? कोई भी उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता। जूट मिल बंद है, पता नहीं 2 महीना से, 4 महीना से, 6 महीना से, हमें तो मालूम नहीं, 4 महीना हो गया। जहां बोलना चाहिए जूट मिल के पदाधिकारियों को, वहां विधायक जी बोलती है। हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन है हमारे आलम बाजार में उपस्थित भाई बहन, हम मनोज तिवारी, हम तो आपकी खुशी के लिए ही काम करते हैं। गाना गाते हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, सिनेमा करते हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर हम सांसद बन के खड़े हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, आपसे। इसलिए आज जब हम वारानगर में इस आलम बाजार में आए हैं, आपसे हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाकर हमारे सजल घोष को जिताकर एक बार पश्चिम बंगाल में डबल इंजन लगा दो, डबल इंजन लगा दो। एक इंजन देश का, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो आपके लिए अनाज भी देते हैं बिना पैसे के, जो आपके लिए इलाज भी देते हैं बिना पैसे के। यहां तो नहीं हो पा रहा। पूरे देश में गरीब आदमी का 5 लाख रुपया सालाना अगर उसके इलाज के लिए लगता है तो ओकरा अपना से नहीं खर्चा करे के पड़ेला, मोदी सरकार देला। लेकिन पश्चिम बंगाल की दीदी, हमारी दीदी देख रहे हो ना ऊपर जो फोटो है, नाम है दीदी, लेकिन काम जो दिखा रही हैं उस काम में और नाम में मैच नहीं हो रहा है। मैं आज आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, क्या पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को 5 लाख रुपया सालाना मिले इलाज के लिए? अगर बीमार होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दीदी कहती है नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर जूट मिल को चालू करके, चालू ही क्यों, जूट मिल चालू भी होना चाहिए और इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जूट मिल में काम करने वाला गर्व से कहे कि हम यहां काम करते हैं, आत्मनिर्भर है और हमें इस पे गर्व है। ये नहीं कहा जा रहा है। सब मां भी रो रही है, माटी भी रो रहा है, मानुष भी रो रहा है। सजल भाई, हम एक बार यहां पे रहते रहते मैंने मां का एक गीत बनाया। मैं जब दक्षिणेश्वर काली या अभी मां का जो फोटो दिया, वो कहां का फोटो, कौन मां? दक्षिणेश्वर काली के फोटो ने मां का। तो हमने एक बांग्ला में गीत मां को गाया। हम तो भोजपुरी में गाते हैं, तो हमने एक बार बांग्ला में, अधिक आमी एकटू बांग्ला जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं, गलती हो सकती है। तो मैंने एक गीत बनाया अभी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो मैं कहा मैं जाऊंगा पश्चिम बंगाल, वारानगर, आलम बाजार, तो मैं कहूंगा कि आमी एसेछि तुम्हारो दरबार, दया करु मा, दया करु मा। মন্ত্রী তোমার জানি নেই, পূজা নেই জানি, আমাদের ছাড়া তুমি দুজনে জানি। আবার বিজেপির উপর করুণা বিচার, দয়া করু মা, দয়া করু মা। কেন হচ্ছে এরকম अत्याचार, दया करू मां। मैं मां से बोल रहा हूं।
अभी तो मैं मां से इसलिए बोल रहा हूं कि चुनाव है, मां शक्ति दो, यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल के वारानगर के लोगों को ये हिम्मत दो। डर किस बात का? डराने वाले पाताल में घुस जाएंगे दोस्तों, हम ऐसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। सजलदा ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कोई इस तरह से डराता धमकाता है, पीछे का व्यवस्था चला गया, आज चप्पे चप्पे पे कानून का राज है। अगर किसी ने डराने की कोशिश की तो उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ी याद करेगी कि डराने का क्या फायदा, डराने का क्या असर होता है। आजकल हमारा गृह मंत्री दिल्ली में नहीं रहते, वही गृह मंत्री এখানে থাকছেন, ঠিক বলছি তো, এখানে আছেন। और ये तब तक रहेंगे जब तक ठीक से चुनाव न हो जाए। हम किसी को दबाव नहीं दे रहे, हम किसी को डराने वाले नहीं हैं। हमारा तो भाजपा का झंडा, पता नहीं आप ध्यान से देखे हो कि नहीं देखे हो, ये झंडा देखे, हमारा भाजपा का झंडा, जय श्री राम। लेकिन इस झंडे को ध्यान से देखना, इसमें खाली भगवा नहीं है, हरा भी है। ये हमारा चरित्र है। लेकिन दूसरों का क्या चरित्र है? उनका कहना है कि हम जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर कोई बांग्लादेश से बॉर्डर डाक के आ गया, नदी फान के आ गया, तो भी उसको कहते आओ आओ तुम यहां वोट दो। दूसरे देश का आदमी भारत में वोट दे सकता है क्या दीदी? बताओ बहनों, दे सकता है क्या? देना चाहिए क्या? हमारे देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो हो सबको ही हमारे देश का वो वोट देना चाहिए। लेकिन दीदी को अब पश्चिम बंगाल के वोटरों पे भरोसा नहीं है। वो तो कहती है नहीं नहीं, जो हम बाहर से बुला के लाए हैं उनका वोट कटेगा तो हम कट जाएगा। तो दीदी अब पत्ता साफ हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब तो 29 अप्रैल को आप लोग वोट डालिए और हम आपसे प्रार्थना करने आए। हम वही मनोज तिवारी हैं। हम हमारा ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म भी देखे हो गया, हमने दरोगा भाई बाबू आई लव यू भी किया था, हमने गाना गाया था। हम बिहार यूपी के लिए बहुत सारा गाने गाए सजलदा, रणभूमि भी किया जी, रणभूमि भी किया। लेकिन आज हम आप लोगों से इस आलम बाजार के इस चौराहे पे खड़ा होके, चाहे वो दीदी छत से सुन रही हो, चाहे कोई अपने दुकान में बैठा सुन रहा हो, या फिर दूर दूर तक किसी को माइक की आवाज जाती हो, मैं मनोज तिवारी आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपको क्या आप नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के महिलाओं को 3000 रुपया गरीब महिलाओं को मिले? आप नहीं चाहते हो? और बीजेपी दूसरे राज्य में दे रही है, दूसरे राज्य में कहीं 2100 रुपया महीना दे रही है, कहीं 1500 रुपया महीना दे रही है। लेकिन समय के साथ पश्चिम बंगाल के गरीब महिलाओं को 3000 रुपया महीना देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है, अगर यहां सरकार बनती है हमारी। क्योंकि ये किसी पे एहसान नहीं है, ये हक है आपका। और इस पश्चिम बंगाल का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसके अनुसार यहाँ की गरीब बहनों का, माताओं का, बेटियों का बनता है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कौन देगा? देने वाले तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सजल घोष की सरकार होगी, लेकिन सरकार को लाने का काम तो आपको करना है दीदी लोग, भैया लोग। तब मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूं। यहां तो मुझे पता चल रहा है कि जो यहां नौकरी करता है पश्चिम बंगाल में, उसको 7वां वेतन आयोग भी नहीं मिलता है। पूरे देश में सबको जितना वेतन मिलने लगा, वो वेतन यहां पे मिला नहीं। दीदी की सरकार रोक के बैठी है। जिस दिन सरकार बनेगी, सजल घोष मंत्री बनेगा। मंत्री आपको बता दो, ये सामान्य विधायक, आप खाली विधायक बना के दे दो, सजल घोष वारानगर का विधायक पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मंत्री बनेगा। ऐसा है, आपको विश्वास दिलाते जाए। मैं दिल्ली का हम कहा के सांसद हैं, जनता जा, हम दिल्ली के सांसद हैं, जहां दिल्ली में पश्चिम बंगाल के भी लोग रहते हैं। कोई रहता है, उससे पूछना मनोज भैया तुमसे कैसा व्यवहार करता है।
जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो कह दिए तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी देखो 2 दिन पहले क्या हुआ है। हे मेरी पश्चिम बंगाल वारानगर की दीदी लोग, आलम बाजार पे तुम भी सोचना। हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 100 विधायक बने तो 33 विधायक, 100 में 33 विधायक महिलाएं होनी चाहिए। आप इसका स्वागत करेंगे कि विरोध करेंगे बताओ? 100 विधायक हो तो 33 महिला भी हो, ऐसा नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। अगर आप भी समर्थन करते हैं तो ताली बजा के उनको दिखा दो, ताकि वीडियो में उनको दिखा सके। अगर 200 विधायक होते हैं तो 200 में 66 होंगे। कहने का मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। और परसों दिन दीदी ने वो बिल गिरा दिया, बोली नहीं नहीं, महिलाएं 33% महिलाएं नहीं आनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले दीदी बोलती है माँ माटी मानुस। अरे माँ को हक तो दो, दीदी दे दो। माँ को हक नहीं देते, नारा में बोलते हो, कैसे चलेगा? ताले हमें बोलछी एटा चलबे ना। अभी क्या चलेगा? कोई बात नहीं। आज पहले दीदी के हाथ में पावर था, उन्होंने हमारा बिल गिरवा दिया। आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाए, बहुत जल्दी महिलाओं को भी उनका 33% हक मिलेगा, ये हम आपको विश्वास है। हमारा सजल दास है तो मैं सुनते रहता हूं, कभी कभी फोन से बात होती थी, आज सामने से देखा हूं। ये वीर पुरुष है, वीर पुरुष सजल घोष। ऐसे ही नहीं ना, मैं पहला बार देख रहा हूं विधायक बनने वाला कैंडिडेट जो पहले ही से नंबर बांट रहा है अपना। और खाली नंबर ही नहीं क्यों बांटा, ये भी बोल रहा है कि बोलना आधा घंटे बाद आपको हम दे देगा कागज वागज, लेकिन आधा घंटा बाद वो आने लाया। असली हीरो तो ये है यार, हम क्या है। और सजल घोषदा, हम पूरा विश्वास करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरी तो और भी तरह तरह से बातचीत हो रही है। इधर आइए मेरे पास, एक बार हमारे तरफ से आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके इनको आशीर्वाद दे दो मेरे भाई बहन। आशीर्वाद बहुत लगता है। और वैसे मैं जो देख रहा हूं ना सजलदा, आपके माथा पर वारानगर का विधायक लिखा चुका है। अब आप तैयारी करो कि मिल कैसे खुलवाना है, मिल की व्यवस्था कैसे करनी है, मजदूरों की जो नेशनल मजदूरी रखी गई है वो कैसे मिलना है, ये आप सब करिए। मैं इसी प्रार्थना के लिए आपके पास आया था। और मैं तो जब जीत जाना ना तो फिर एक दिन बुलाना मुझे। हमारी मौली राय, आप दीदी क्या है, मंडल प्रेसिडेंट है। अरे उसके लिए ताली बजाओ, मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ा होता है हमारा। और हमारे सत्येंद्र गौतम जी एसएन नहीं, ये अच्छा आपको लिए बोला है तो जी आज एसएन गौतम जी बहुत बढ़िया, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, मौली राय जी उपस्थित हैं। और तो भैया जो दादा बोल रहा था इधर भाषण दे रहा, आपका नाम क्या है? कर्नल चौधरी। अच्छा कोल्लोल, कोई बात नहीं, हम आपको कर्नल ही देखते हैं। हे मेरे भाई बहन, एक बार पश्चिम बंगाल में जनता की सरकार बनाई। दीदी ने बहुत वादा किया था, लेकिन अब दीदी, ममता दीदी की बात कर रहा हूं, अब ममता दीदी दया वाली दीदी नहीं है, अब वो अत्याचार करने वाली दीदी बन गई। हम कई लोगों से बोलते हैं भाई क्या होगा, वो बोलते हैं कि আমি बोलबो ना, किंतु भाजपा आसছে और टीएमसी जाচ্ছে। ये सबके जुबान पे है, मगर ये भय क्यों है? ये डराया किसने? ये सिंडिकेट राज बनाया किसने?
सिंडिकेट राज नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल के लोगों का राज चाहिए, जो सजल घोष जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दे सकते। तो मैं आप लोग से क्या बोलूं, हमारा तो मैं तो चाहता हूं जिस दिन आप जीत जाओगे तब मैं गाना सोच के रखा हूं। एक मेरा गाना है, हे राजा जी, ये मेरा गाना है। हे राजा जी ये करे तारा हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, लेकिन आज तो नहीं गाने लायक है। आप इस गाने को गाने के लिए, वैसे तो मैं बहुत गाना गाया, मैंने ये भी गाना बगल वाली जान मारी ली। एक गाना हमारे एक तो गाना छे, हरे कन्नवा में सोबे वाली जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। किंतु आज इस गाने का कोई दरकार नहीं है। गाना की दरकार उस दिन पड़ेगी जिस दिन सजल घोष यहाँ से जीतेंगे और मनोज तिवारी इसी चौराहा पे आएगा। लिट्टी चोखा भी खाएं। ये भी मेरा गाना है, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा। अरे यूपी कोलकाता चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा रख ले रहिया जइहा जहां संसार। अच्छा, आप लोग सब लोग भोजपुरी समझ लेते हो? गाना सुनते हैं हम लोग। दादा आप हमारा गाना, मैं तो बांग्ला भी समझ लेता हूँ। आप जितना आप बांग्ला में बोल रहे थे ना, मैं सब समझ रहा था। और मैं इस विश्वास से आपको कह रहा हूं, हवा बदल गई है। और ये मैं आज कह रहा हूं ना, ये मेरा 22वां विधानसभा है। इससे पहले मैं 21 विधानसभा में प्रचार कर चुका हूं। अभी उत्तर हावड़ा जा रहा हूं, उसके बाद लास्ट में और कहां जाएंगे, एक तो और कोई विधानसभा है। फिर कल मैं नॉर्थ बंगाल जाऊंगा। और मैं जो पश्चिम बंगाल में देख रहा हूं, हर जगह हवा यही है कि भाजपा आसছে, टीएमसी जाচ্ছে। जिन लोगों ने समय रहते अत्याचार किया, किसी को वोट देने के समय डराया धमकाया, ये कभी लोकतंत्र के समर्थक नहीं हो सकते। हम भी सांसद लड़ते हैं, हमारे सामने ही कोई आदमी हमसे बातचीत करने लगता है, कोई बात नहीं, हम उसको समझाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं भाई आप मुझे जिताओ, लेकिन उसका मन जिसको मन करे उसको वोट दे। यहाँ तो वोट दूसरे को देने पे उसका कॉलर पकड़ लेते हो, उसको डराते हो, धमकाते हो। तो अब वो डराने धमकाने वाला जमाना गया। अब पश्चिम बंगाल के हमारे सभी मां माटी मानुष के समर्थक भाई बहन, आप गर्व से जाइए, वोट देके आइए। पश्चिम बंगाल में सरकार भाजपा की आ रही है और किसी गुंडे बदमाश की अब खैर होने वाली नहीं है। ये हमारे सजल घोष के सामने आपसे हम तो बात कर रहे हैं। अब उद्योग धंधा शुरू होगा, यही होना चाहिए ना दादा, और क्या होना चाहिए। और मैं आपसे बताऊं, इन लोगों का व्यवहार ऐसा है। आज मैं जब यहां आया हूं ना, हमें नेशनल में सांसद होने के नाते मेरी Y+ सिक्योरिटी है, लेकिन आपको बताऊं कि ये लोग अभी भी कुछ लोग इतनी बदमाशी कहीं कहीं कर रहे हैं कि आज मुझे सिक्योरिटी तक नहीं दिया। तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दो जगह आप लोग बैठे हो, जो लोग ये बदमाशियां कर रहे हो, मनोज तिवारी की सिक्योरिटी पश्चिम बंगाल की जनता है, वारानगर की जनता है, जो होगा देखेंगे। लेकिन आपके सामने हमारी प्रार्थना इतनी रहेगी कि आप लोग हमारे सजल घोष दा को कमल का बटन दबाकर इनको जिताकर सबका साथ सबका विकास की सरकार बनाइए मेरे भाई बहन। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। चाहे कोई
किसी का नाम जयकारा करता हो, चाहे कोई किसी की पूजा करता हो, किसी को पूजा बात में बाधा डालना चाहिए क्या? तो सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता की बात बीजेपी करती है। हे हमारे भाई बहन, जिस दिन हमको समाचार मिलेगा ना कि वारानगर जीत गए, तो मनोज तिवारी दिल्ली में ही डांस करने। और मैं चाहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल की सरकार भाजपा की बने तो मेरा वारानगर सबसे ऊपर 10 लोगों में दिखना चाहिए। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आप सब हमारी बात रख लोगे? हमारा एक गाना है, ओ जिया हो बिहार के लाला। अब मैं उस गाने को, हरे जिया हो पश्चिम बंगाल के बाला, जिया वारानगर वाला, जिया 2000 तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, 29 अप्रैल के तू कमल के बटन दबावा ये भैया भैया। अरे सजल घोष के वारानगर के विधायक बनावा ये भैया। बांग्लाते की बोला जाए? विधायक, एमएलए, विधायक। सजल घोष के वारानगर के विधायक बनावा ये भैया। अरे नरेंद्र मोदी के डबल इंजन लगावा ये भैया। अमनो जवायाइल बाटे हमरो इज्जत बढ़ावा ये भैया। हे दीदी काकी, आपके शरण में आके एक ही प्रार्थना बा, अरे चुनाव के बाद फिर से वारानगर आना बा। हम आपके बारे में बहुत बातें सुनते हैं, योर डेयरिंग, और सजल घोष की जरूरत थी और सजल घोष यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन 5 साल बाद जब हम यहाँ आए ना, तो हमारा जो एमएलए सजल घोष हो, वो ऐसा दिखाए कि मनोज तिवारी को फिर दोबारा प्रचार करने की जरूरत न पड़े। ऐसी हमारी यहाँ की पब्लिक कहे कि मनोज तुम जाओ, हम सजल घोष को दोबारा यहाँ से बना करके उसको ताकत देंगे। ये मैं देखना चाहता हूँ सजल घोष। ये मेरा वादा है। मैंने क्या बोल रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ घर घर जाके एक बार मौका दो। अगर काम किया तो 5 साल रख लेना, अगर काम नहीं किया तो निकल देना। निकलना कौन चाहता है भाई? निकलना तो कोई नहीं चाहता है। तो क्या करना है? काम करना है। मैं इसे ऐसे दिल लगा के काम करूंगा, मैं यहाँ रह के काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि मेरे विरोध में खड़े होने के लिए भी आदमी शर्मिंदा होगा। ये मेरा जवान है। मैं जिस भगवान को मानता हूं, मैं अपना स्वर्गीय बाबा माँ के शरण करके यही बात बोलता हूं, मैं अपना स्वर्गीय माता पिता को शरण करके यही बात बोलता हूं कि मैं आपके लिए सिर्फ काम करूंगा। अभी मैं बीजेपी का हूं, अगर मैंने जिताया दोपहर को, शाम से मैं पब्लिक का बन जाऊंगा। और आप जो बोल रहे हो ना, हमें विश्वास हो रहा। मैं तो ये देख रहा हूं, हम आए थे तो ये गली एकदम खाली थी। अभी यहां से लेके हुआ तक, हुआ से लेके हुआ तक, यहाँ से लेके हुआ तक, और ये पीछे वहां से वहां तक। मुझे लग रहा है आप टीएमसी की सभाओं को देख लेना, खाली स्टेज लगा रहता है और 5 आदमी बैठा रहता है, कोई सुनने नहीं आ रहा है। डरा के कब तक सुनाओगे? डरा कर सुनाने का समय गया और अब सही में जनता का शासन करने का समय आ गया है। मेरे भाई बहन, हम मनोज तिवारी अगली सभा में जाते हैं, आप सबको धन्यवाद करते हैं। हम एक बार बार एक पंक्ति हम कहते हैं, आज यहाँ मन कर रहा है, हमारे भोजपुरी में एक गाना है, अरे बीजेपी कदम बढ़ाइले बा, असजल घोष गर्दा उड़ाइले बा। बीजेपी कदम बढ़ाइले बा, सजल घोष गर्दा उड़ाइले बा। इसका मतलब होता है आपने लोगों के दिलों में जगह बनाया है। इट विल कन्वर्ट इन ईवीएम
ऑल गुड विशेष सजलदा। और मैं आप सब लोगों से चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए दक्षिणेश्वर काली मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर पश्चिम बंगाल की पावन माटी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी। हमसे कोई गलती शब्द निकला होगा तो क्षमा कर देना। आपको लगे कि दिल से दिल तक बात गई है तो 29 अप्रैल को भाजपा का पश्चिम बंगाल से जुड़ा ये यज्ञ सफल कर देना मेरे भाई बहन, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आएंगे ना तो फिर गाना गाएंगे कि ही हंस देली छठ देली मार देली। अभी तो भाई म्यूजिक नहीं है ना। जब अगली बार आएंगे ना पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ आएंगे। बुला देना। पैसा बहुत लेता हूँ गाना गाने का, लेकिन तुमसे नहीं लूंगा, फ्री में गाऊंगा वारानगर के लिए। इतना है आपसे वादा। यू हैव टू मेक ओनली स्टेज, बाकी सब। और पता नहीं बाद में तुम ही संस्कृति मंत्री बन जाओ पश्चिम बंगाल का। अभी जानी ना। थैंक यू सो मच। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে মনোজ তেওয়ারির একটি বক্তব্য আমার মনকে খুবই ছুঁয়ে গেছে। আমি জানি আপনারা মানে বরানগরবাসী যারা যারা কালকে ওই সভাতে উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গেও এমনটা অনুভব হয়েছে। তিনি যেটা বলেছেন যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো বর্তমানে এখন টিএমসি সরকার চলছে। তৃণমূল যেটা দাবি করে বা আমাদের মাননীয় যিনি এখন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন তিনি দাবি করেন যে আমাদের সরকার হলো মা মাটি মানুষের সরকার। সত্যি তো, যে সরকার এই রাজ্যের সমস্ত মাকে কাঁদিয়েছে, মাটিকে কাঁদিয়েছে এবং মানুষকেও কাঁদিয়েছে। আমি তো মনে করি এই রাজ্যের অভয়ার মাকে আজ চোখের জল ফেলতে হয়েছে, কালীগঞ্জে তামান্নার মাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে, এবং কসবা ল কলেজের কাণ্ডের জন্য ওই মেয়েটি যে কিনা উড়িষ্যা থেকে এখানে ল পড়তে এসেছিল তার বাবা মাকেও চোখের জল ফেলতে হয়েছে। যাই হোক, আমার প্রতিবেদন এখনকার মতন এইটুকুই। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে, এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করবেন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটিকে অল সিলেক্ট করে রাখবেন, যাতে করে আমি ভিডিও আপলোড করলে সবার প্রথম আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। নমস্কার।